and Namaste. Welcome for the third lecture of infrared spectroscopy. In the case of infrared spectroscopy, up till now we already have discussed on various parts of infrared spectroscopy. We already know where it lies, like after UV and before microwave, and we are knowing its different region, photographic region, near UV, near IR, very near, and far infrared regions. Okay, from we means infrared means what? From red to 300 to 400 microns is the regions out of which near infrared region, that is 2.5 to 25 microns is mostly we are studying. We discuss on that part also. We discuss on the particular requirement for air radiation also. Then like particular fixed wavelength of radiation which is having that molecules, or inside that molecule there is atoms, they having the same energy. When they are matching, then there is an absorption takes place. As well as we know that there is a particular induced dipole moment where there is an particular charge is there. So such a things, as well as we study on the symmetry too. When there is a certain changes in the symmetry, if another hydrogen is replaced by the Br group, then they causes the absorption. That we know that basic things. Then we study about that theory part, rotational, vibrational, electronic, and combination of all. Okay, then we study about the polyatomic molecules. What is the polyatomic molecules? And then there is an stretching and bending concept. Stretching, we take the example of springs where we can stretch, bond length can change, axis and angle cannot be changed. In the case of stretching, we see about the symmetrical, unsymmetrical stretching. And while in the case of bendings, bending means what? We take the example of rod. हम एक आधे रॉड का एग्जांपल लेते हैं, हम उसको ऐसे प्रेशर दे के, एनर्जी दे के रॉड को थोड़ा सा झुका देते हैं, लेकिन अगर उसको छोड़ दे तो वैसे वैसे रहेगा. लेकिन नॉट इन द केस ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग को हम एनर्जी देंगे, वो खींच सकते हैं, जैसे उसको छोड़ देंगे इट रिगेन्स ओरिजिनल प्लेस. लाइक दिस वन इज द डिफरेंस. सो in the case of that bending concept, there are the various 4 points, like that is they are the 4 points: scissoring, rocking, wagging, and twisting. These are the 4 points that we have discussed, and various factors affecting to do it, like symmetry, bondings, intermolecular, and all concepts we already have studied in the first lecture. Then the second, infrared spectroscopy, second we have studied about uh, what we have studied is like there is an start with that instrumentation part. So in the case of instrumentation, mostly the important point like radiation source. So in the case of IR spectroscopy, radiation source and the next is a sample handling system and detector. These are the three important components. Okay, so as we know, in the case of radiation source, I have given one hint to be remember various kinds of radiation source. As I have given to you, India nation good and healthy. So that I means incandescent lamp, nurse mean nurse glower, uh, good means global cell, and healthy means high speed mercury arc. So like this one you can able to remember there are the 4 different types of radiation sources. So as we know what is incandescent lamp, generally that incandescent lamp consists of nichrome wire which is a closely wounded. ठीक है, निक्रोम वायर को हमने क्लोजली wounded किया था. Then we apply the potential to that one, it gives the black oxide film. ये हमें क्या करता था? ब्लैक ऑक्साइड फिल्म देता था. इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, सबसे ज़्यादा तो यही इंटेंस है. ठीक है. देन देर इज़ एन नर्स ग्लोवर. तो नर्स ग्लोवर में क्या है कि इसके अंदर अर्थ मेटल्स है. ठीक है, एक साइड हमने सीमेंटेड की थी, एक साइड से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था. ओके,
So there is a particular length, diameter that already been discussed. ये सिलिकॉन कार्बाइड से 1/3 है, ठीक है, मीन्स 3 टाइम छोटी है। अगर वो 100% लेंगे तो 33% हम इसका ले सकते हैं, इतनी साइज़। तो ये इस साइज़ की क्या है हमारे पास, नर्स ग्लोअर है। इसके अंदर हमने क्या अर्थ मेटल ऐड किए हैं। तो वी रिक्वायर द हीटिंग्स टू गेट दिस वन। तो जैसे ही अर्थ मेटल हीटिंग की वजह से उनमें रिएक्शन होने लगेगी एंड इट गिव्स द कंटिन्यूअस इमिशन, हमें ये कंटिन्यूअस इमिशन देने लगते हैं। देन द थर्ड इज एन Glober cell. So in the case of the Glober cell, generally it is a larger, 3 times more bigger than the, nearly about 2.5 to 3 times more than the uh, nurse glower. So it is made up of a silicon carbide rod, uh, which means generally which gives the continuous emission in the case of this type of detector. And finally we discuss about that fourth one, that is high speed mercury arc, which is a double jacketed quad core lamp mercury with a high pressure is enclosure. In that case, when we apply the potential, mercury get expand and it gives continuous emission of the radiation. Then we study about the monochromators, grating, then the mirrors we already discussed, and the slit through which the radiation it gets passed. Just one thing you have to be remember, that is not included in a syllabus like FTIR. So in the case of just IR, we are passing that radiations. Then if we replace that monochromator, simple monochromator, by, in the case of FTIR we keep it a beam splitter, helium neon laser, and there are the another two, nearly about 3 mirrors. One is fixed mirror, one is the moving mirror, and one is the concave mirror. Fixed means it is stable, through which, and there is a beam splitter, we split the radiation towards the concave mirror and towards the moving mirror, and both radiation goes toward the fixed mirror. But that concept we can means you just study that one, FTIR, which is very vital part. So that monochromator get changed in the case of that FTIR. In the IR there is a simple monochromator is there. So that is a monochromator that we have studied. Then it goes toward the sample handling systems. So in the case of sample handling systems, in the case of IR, I am saying about the IR, where we are having the handle 3 different, which is a important concept. Like special question may ask to you how to handle or which kind of samples that we analysis in the case of IR. So there are the 3 different types of samples that we have analysis, like solid, liquid, and gases. So we just overcap that one, that solid is a solid films. Then in the case of that one, that is a press palette techniques, KBR is there. We apply the pressure 25,000 of psi, and we having a cavity, and we lead to formation of an pellets, small pellets are there, which is looking like an tablet. ठीक है। और मल मेथड में हमने न्यूजन ऑयल लिया था, पर्टिकुलर इसमें मिक्स किया था, ठीक है। फिल्म में भी हमने इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ किए थे, और जनरली हमारे पास सैंपल है, ठीक है, उसके साथ हमने उसको मिक्स किया था। और सॉल्यूशन फ्लो थ्रू सिंपल सॉल्यूशन मेथड भी है, कि जिसमें हम सिर्फ सैंपल लेते हैं और उसको सिर्फ अप्लाई करते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ सैंपल इन द केस ऑफ सिंपल सॉल्यूशन, एज वेल एज दैट फिल्म मेथड में हम सिर्फ क्या करते हैं, 1 ड्रॉप लेते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, हम उस स्लाइड को नीचे से थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि वो फिल्म फॉर्म कर सके। सो दैट थिंग वी स्टडी इन द केस ऑफ सॉलिड्स। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, mountable cell, demountable cell, then that mountable, demountable, variable wavelength, then path length change, and cavity or small scale. So in the case of mountable, demountable, generally there is a use of Teflon, then there is a use of mercury to get the tight seal to that one. Then we get connected, we connect attach it other with the clamp, हम उसको clamp से attach करते थे, that we assemble in the stainless steel, हम उसको एक जगह पे फिक्स असेंबल करते थे,
एंड देन वी अप्लाई अ सैंपल बाय हाइपोडर्मिक नीडल। हम हाइपोडर्मिक नीडल से क्या करते थे, सैंपल को अप्लाई करते थे। दैट इज द फिक्स वन, जो स्टेनलेस स्टील है फिक्स था, इसको हम माउंटेबल सेल करते थे। डिमाउंटेबल मीन्स वी कैन रिमूव एंड अगेन वी कैन असेंबल। सो डिमाउंटेबल सेल में टेफ्लॉन सेम है, मर्क्यूरी टाइट सील सेम है, हम उसको अटैच भी एक जगह पे करते हैं क्लैम्प से। लेकिन क्या होता है कि इस चीज़ में थर्ड केस में क्या है कि इट इज़ नॉट फिक्स, हम उसको वॉश करके अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट कैन बी रीयूटिलाइज। सो दैट्स वाई द स्टैंड इज नॉट कीप इट कांस्टेंट, वी कैन चेंज। ठीक है, पैलेट्स को हम बदल सकते हैं, KBR से जो बने उसको बदल सकते हैं। और बाकी की जो प्रोसीजर वही सेम है कि हम यूज़ द हाइपोडर्मिक नीडल टू अप्लाई द सैंपल। हम क्या कर रहे हैं, हाइपोडर्मिक नीडल से हम सैंपल अप्लाई कर रहे थे, देन and then we pass the infrared radiation. Then the next concept is there, like flow through cell, in which we take the IRs, means flow through cell is generally used for the column chromatography. As we know, in the case of that one generally simple एक ब्यूरेट के जैसा रहता है, तो ब्यूरेट के जैसे दिखने वाले इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते थे कि एक सैंपल पुटअप करते हैं और उसका फ्रैक्शन कलेक्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक ml से ऐसे फ्रैक्शन हमें सेपरेट मिलने लगते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है कंटिन्यूसली हमें मिलते रहते हैं, और ये जो फ्रैक्शन है हम उस फ्रैक्शन को एक सेल के साथ पास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक आयर रेडिएशन है वहाँ पे एक चेंबर है, वो सोल्यूशन ऊपर से आ रहा है और एक कंटिन्यूसली आयर रेडिएशन उसके ऊपर पास हो रहा है। तो जैसे ही उसके ऊपर सैंपल आएगा वो आयर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा एंड वो जो वाइब्रेशन देगा, वो वाइब्रेशन हम हर सब्सटेंस के हिसाब से अलग रहेगा और हमें वो रीडिंग मिलती रहेगी, और उसके हिसाब से भी हम सब्सटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट फ्लो थ्रू सेल। देन पाथ लेंथ, हम जब हमने सेल ली है उसको प्रोसीजर वाइज कनेक्ट किया है, टेफ्लॉन एवरीथिंग वी हैव डन। जब हमने उसको स्टैंड में सेट किया है तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर के जो पैलेट्स है उस पैलेट्स का इंटरनल डायमीटर मीन्स द लेंथ इज देयर, पाथ लेंथ दोनों की चेंज कर सकते हैं। हाइपोडर्मिक नीडल से तो हम ऐड कर रहे हैं सैंपल, लेकिन उसकी क्या कर सकते हैं हम, पाथ लेंथ चेंज करके फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो दैट इज अ पाथ लेंथ सेल फॉर द लिक्विड्स एंड द फाइनल कैविटी सेल। ऑल्सो स्मॉल स्केल भी हम उसमें बोलते हैं, इन विच देर इज एन प्लास्टिक बॉडी, दो डिफरेंट प्लास्टिक बॉडी है, और सिल्वर से बने वाले AgCl से बने वाले हमारे पास क्या है, दो हाइलाइट प्लेट से विंडो टाइप है जो कि उस प्लास्टिक बॉडी के अंदर हमने सेट किए हैं। बाद में हमने क्या किया है, दोनों प्लास्टिक बॉडी को सील किया है। वी हैव सील बोथ द प्लास्टिक, सील करना मीन्स व्हाट, लाइक द स्क्रू ड्रिवन। एक जगह पे स्क्रू कैसे हम टाइट करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, एक जगह से स्क्रू लेते हैं, दोनों प्लेट्स को अटैच करते हैं और फिर उसको टाइट करते हैं। टाइट करने की वजह से क्या होता है, वो फिट हो जाते हैं। देन इन दैट वन वी प्लेस द सैंपल एंड देन वी अप्लाई द रेडिएशन। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रेडिएशन अप्लाई करते हैं। जैसे वो रेडिएशन अप्लाई करेगा तो क्या होगा, देन द सैंपल गेट एब्जॉर्ब। सो लाइक दिस वन देयर इज एन लिक्विड। इन द केस ऑफ गैस इट इज़ लार्जर वन। तो ये जो है बहुत बड़ा है, मीटर से लेके सेंटीमीटर तक आता है। इसके अंदर हम इनर्ट गैसेस मिक्स किए हैं, ऊपर से एक वाल्व है, वाल्व थ्रू हम वो जो गैसेस है, जनरली दिस टेक्निक इज यूज फॉर टू स्टडी ऑफ द गैसियस सैंपल्स और dissolve the solid or liquid into the gaseous one, come to the gaseous forms, and then we can done the analysis of that one. तो इसमें कंटिन्यूस रेडिएशन हम पास करते हैं इनर्ट सॉल्वेंट के साथ। सो जनरली दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर टू द एनालिसिस ऑफ चिमनीज, एनालिसिस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज इल्यूट, मीन जो गैस क्रोमेटोग्राफी से हमें जो सैंपल मिलता है जो इल्यूट होकर सेपरेट होता है, और सेपरेशन होने के बाद उस सेपरेट कंटेंट को हम आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के गैस सैम्पलिंग में हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो दैट इज इन द केस ऑफ दिस वन। सो नाउ इन टुडेज लेक्चर we are having certain objectives, like understand about detector, mostly water detectors
generally there are 4 different types of detector. In the case means totally 6 detectors are there that we have to understand. Just first basic thing that we have to know that one they are classified to 2 types. One, there is an depends upon that current or heat generated is there, or simply we can say thermal dependent one. And the second one is not depends upon any kind of heat, but they are dependent upon the photons. So uh, next point we have to study about the types of detectors. So as I told to you, 2 types. In the 2 types, if we study thermal, so there are the 4 types: bolometer, uh, thermocouple, then pyrotech detector, and the fourth one is the Golai cell. These are the 4 type detectors that given in your syllabus. Thermistor is another one kind of syllabus, one kind of detectors. So we added that one too. But 4 detectors are in your syllabus, and in the case of photons, there are the 2 types: photoconductive detector and semiconductive detectors are there. Okay. So an application, we have studied that particular part in particular lectures to know applications of IR. Okay. So we have to go towards, or we just move towards the next point, that is the detector. Or before that, there are the whole point that we have discussed, like incandescent lamp, nurse globe, Glober cell, high pressure mercury arc. Then we discuss on the what is the monochromators, then the sample handling systems. Up till now we have covered in the last lecture, but uh, now in this lecture we are moving towards this thermal detector. हम क्या कर रहे हैं, थर्मल डिटेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो इन द केस ऑफ थर्मल डिटेक्टर देयर इज अ थर्मोकपल, bolometer, piezoelectric detector and Golai cell. And in the case of photo detector, there is a photoconductive detector and semiconductor detector, as we already discussed. ठीक है. तो हमने अब यहाँ से लेज़र इंटरफेरोमीटर है, मिरर्स है, यहाँ से IR सोर्स, मिरर, बीम स्प्लिटर्स है, मिरर है, सैंपल है और डिटेक्टर. दैट इज अ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ FTIR. सिंपल सैंपल हम पास कर रहे थे. ठीक है. So now in the case of this one, there is a detector. So there are the 4 types of detectors and 2 types of photo detectors. So thermal detector के 4 टाइप है, photo detector के 2 टाइप है. One by one we have to be study. In the case of this one, thermal detector, first time is an bolometer. A bolo is derived from the word, Greek word bolometron. That derived from the one bolometron. Bolo means what? There is a समथिंग थ्रोन. हम कुछ तो उसकी तरफ फेंक रहे हैं, और समथिंग वी कैन थ्रो टू दैट साइड. एंड metron means what? To measure. Okay. Metron means what? To measure something. So bolometer is taken from that word. Bolo means we are something thrown, something energy is passing, and meter means to we generally measure how much is energy is passing from that one. ठीक है. कितनी एनर्जी उसके ऊपर पास हो रही है, हम वो स्टडी कर रहे हैं. देयर फ्रॉम ग्रीक वर्ड बोलोमीटर. सो दिस होल असेंबली इज बेस्ड ऑन द विस्टॉन ब्रिज नेटवर्क. ये जो पूरी की पूरी असेंबली है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? विस्टॉन ब्रिज के ऊपर है. सो इफ यू एबल टू सी इन दिस डायग्राम, देर आर द 4 डिफरेंट आर्म्स. हमारे इसमें 4 डिफरेंट आर्म्स है, और सेंटर में क्या है? हियर इज अ 1 गैल्वेनोमीटर. अब इसमें से एक अननोन है और 3 हमें पता है. 1 कंसिस्ट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, रिमेनिंग 3 इज हैविंग अ नोन रेजिस्टेंस. ठीक है. देन व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, जब हम ब्रिज बैलेंस कर रहे हैं, व्हेन बैलेंस द ब्रिज, देन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. जब हम यहाँ से क्या आ रहा है आपका, एक रेडिएशन आ रहा है. ठीक है. रेडिएशन कंटिन्यूसली आ रहा है. जब इसके ऊपर कोई भी एक्सेस एनर्जी की रेडिएशन पास नहीं होगी, तब क्या होगा? गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. दैट गैल्वेनोमीटर शोज द फिक्स डिफ्लेक्शन. ठीक है. तो अब सपोज हम क्या करेंगे,
इस 4 आर्म में से व्हाट वी गोइंग टू डू, वी आर टेकिंग, ठीक है, इसमें से एक ये आर्म हम लेंगे और एक आर्म हम लेंगे, ठीक है, इस 4 आर्म में से ये और ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इसमें से हमने ये आर्म ले ली है, ये और ये आर्म, ठीक है। अब यहाँ से हमारा रेडिएशन तो आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर रेडिएशन हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें से 2 ही आर्म हमने ली है, तो 2 ही आर्म हमने स्टडी कर रहे, तो अब इसके ऊपर से रेडिएशन गिरेगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, जैसे इसके ऊपर रेडिएशन आएगा, आपके पास 2 आर्म है, उसमें से एक आर्म के ऊपर रेडिएशन गिरेगा, उसमें से क्या होगा, ये दोनों जो आर्म है उसमें से एक आर्म के ऊपर हमारा रेडिएशन गिरेगा और एक आर्म को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन नहीं गिरने देंगे, ठीक है। जिस आर्म के ऊपर हमारा रेडिएशन गिरने वाला है, on the arm on which the radiation is get formed, that is called as the indicator or the platinum strips, okay, उसको क्या बोलते हैं हम, indicated platinum strip, because they are made up from platinum, okay। so उसको हम क्या बोलेंगे, indicator platinum strip, which is an unknown one, which is the unknown. So we have indicator and reference strip. So both strip are connected with the galvanometer. As I told to you, जिसके ऊपर रेडिएशन गिर रही है उसको हम इंडिकेटर बोल रहे हैं, जिसके ऊपर नहीं गिर रही है हम उसको रेफरेंस बोल रहे हैं। अब जैसे ही उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन्स जो उसने एब्जॉर्ब की है उसकी खुद की एनर्जी थी, एब्जॉर्ब करने के बाद जो डबल एनर्जी हो गई है, तो वो जो एक्सेस एनर्जी है वो फॉल होती है इंडिकेटर स्ट्रिप के ऊपर और इंडिकेटर प्लैटिनम स्ट्रिप के ऊपर, विच इज़ अननोन रेजिस्टेंस। तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इनबैलेंस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनबैलेंस फॉर्म होता है। एंड इनबैलेंस होता है मीन्स व्हाट, द टेम्परेचर ऑफ द इंडिकेटर स्ट्रिप, ये जो इंडिकेटर स्ट्रिप है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, द टेम्परेचर ऑफ द इंडिकेटर स्ट्रिप गेट ऑन इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन द रेजिस्टेंस गेट चेंजेस। अब रेफरेंस जो है वो तो फिक्स है, स्टेबल है, इसके ऊपर कोई रेडिएशन नहीं गिर रहा है, लेकिन इंडिकेटर के ऊपर क्या हो रहा है, रेडिएशन गिर रहा है, तो उनके वजह से उनमें चेंजेस होने लगे हैं, रेजिस्टेंस गेट चेंजेस, द ब्रिज बिकम इनबैलेंस, चारों आर्म के बीच में जो ब्रिज बना था वो इनबैलेंस होने लगा है, एंड दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। वो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करने लगता है, दैट गिव्स द एक्सेस ऑफ डिफ्लेक्शन, एंड it is the amount of deflection that given is directly proportional to the amount of current flowing through the galvanometer, or the radiation is get fall, excess radiation जितना fall होगा उतना ही वो क्या करेगा, excess और deflection हमें शोन करेगा। response time is nearly 4 millisecond inverse, means बहुत कम है, ठीक है। so that is the bolometer. Then there is a thermocouple itself, its name couple, couple means what, दो थिंग है, दो मेटल वायर हम हाथ में लेंगे, इफ इट्स एबल टू सी इन दिस डायग्राम, हियर इज वन मेटल वायर, हियर इज एन अनदर मेटल वायर। हमने क्या किया है, दो डिफरेंट मेटल वायर लिए हैं, दोनों मेटल वायर को थोड़ा सा, सपोज एक रॉड लिया है मेटल का, वी गिव इट द नेम वन मेटल ए एंड अनदर मेटल बी, हमने उसको थोड़ा सा क्रॉस किया, एनर्जी देने की वजह से उसको क्रॉस किया, और मेटल बी को भी हमने थोड़ा क्रॉस किया, और दोनों जो एंड पॉइंट है उनको अटैच किया, ओके दोनों। सो मेटल वायर हमने क्या किया है कि अब मेटल ए है और मेटल बी है, हमने क्या किया है, मेटल ए और मेटल बी को अटैच करना है, दोनों भी मेटल वायर है, तो अटैच कैसे करेंगे हम, बाय द यूज ऑफ वेल्डिंग। हम क्या करते हैं, दोनों साइड को
वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग करने की वजह से दोनों साइड अटैच होती है, ठीक है। अब दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग जंक्शन, हम उसको वेल्डिंग जंक्शन बोलते हैं। अब टोटली हमारे पास क्या है कि एक इधर का एक जंक्शन है और एक इधर का एक जंक्शन है। सो रेडिएशन गेट फॉल ऑन टू द, ठीक है, अब दो जंक्शन हमारे पास हो गए हैं। सो अब एक जंक्शन के ऊपर हम रेडिएशन फॉल करेंगे, एक साइड पे हम कोई भी रेडिएशन फॉल नहीं कर रहे, दैट वर्क्स एज थर्मली आइसोलेटेड। हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मली आइसोलेट, मीन्स थर्मली आइसोलेट कर लेते हैं, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं उससे। अब रेडिएशन सोर्स जिस साइड पे गिर रहा है, जिस जंक्शन पे वो क्या हो रहा है, गिरने लगा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉट जंक्शन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉट जंक्शन बोलेंगे। और रेडिएशन सोर्स जिस साइड पे नहीं गिर रहा है, इस साइड पे रेडिएशन सोर्स नहीं गिर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड जंक्शन, ठीक है। अब जब सिंपल और रेडिएशन फॉल हो रहा था तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, हमें उसको एक रीडिंग हमें पता थी कि इतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिर रहा है। लेकिन जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का रेडिएशन इसके ऊपर गिरने लगेगा तो क्या होने लगेगा, दैट पॉइंट इज गेट हीटेड, यहाँ पे हीट जनरेट होने लगेगी, टेम्परेचर वहाँ पे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। वाइल अदर साइड इट इज अ फिक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द cold junction. Because of that, heat generated is there, that causes the potential difference between the two junctions, cold and hot junctions. Okay, and the response time of this one is 60 milliseconds for the thermocouple. But the important thing is that it is a most widely used kind of detector. Okay, generally it work like an various means थर्मल जो चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसका डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। हम आपके 8वें सेम में भी इसके कुछ चैप्टर है, तब हम उसके बारे में, थर्मोकपल का रोल अनदर आएगा, तब हम उसके बारे में फिर से एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द थर्मोकपल। देन थर्मिस्टर, एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल वी एडेड दैट वन, बिकॉज हर चीज़ में क्या था कि हमने बोलोमीटर स्टडी किया है, थर्मोकपल स्टडी किया है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है, थर्मिस्टर इज अ मेड अप ऑफ फिक्स्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये जो बनता है, ओके, इसमें जैसे रेडिएशन फॉल होगा, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेस, उसमें जो मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर गेट इंक्रीजेस, उसके वजह से उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ओके, उनके वजह से इसमें पहले हमने क्या स्टडी किया था, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन इस चीज़ में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो टू थर्मिस्टर फ्लेक्स आर देयर, वन इज एक्टिव, जैसे हमने इसके पहले क्या था कि इंडिकेटर और रेफरेंस था, इस चीज़ में हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव डिटेक्टर एंड अदर रेफरेंस डिटेक्टर। तो यहाँ पे एक एक्टिव है और एक रेफरेंस है, तो एक्टिव के ऊपर हम रेडिएशन फॉल कर रहे हैं और जो रेफरेंस है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, व्हेन रेडिएशन गेट फॉल्स द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड रेजिस्टेंस गेज ऑन डिक्रीजिंग। तो सपोज उसका 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा तो रेजिस्टेंस 5% से चेंज होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। सो बाय दिस वन, हाउ मच इज द टेम्परेचर गोज ऑन और रेजिस्टेंस कितना डिक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ द एनालाइट गेट प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। सिर्फ इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्पॉन्स टाइम्स लोअर देन द अदर। अभी हमने पहले इसमें देखा था कि 4 था, सेकंड इसमें 60 है, लेकिन इसमें response times low than other, low means in fact it's more time it required for to get response, ठीक है। so that is the thermistor. Then the next one is the Golai cell. अब Golai cell में क्या है कि it consists of metal cylinder, ठीक है। अब
सबसे बोलोमीटर और गोलाई सेल के ऊपर स्पेशल नोट्स भी आ सकती है, तो उतना ध्यान रखना है आपको. सो गोलाई सेल, just remember, as there is a radiation is get pass, it is an hollow body. Into that body there is an xenon gas is enclosed into that one. एक साइड पे मेटल रिजिड बॉडी है, एक साइड जो कवर अप है, it consists of window, and to that window it is generally having a rigid blackened metal plate और मेटल बॉडी हम बोलेंगे एक साइड से, और एक साइड से देर इज एन फ्लेक्सिबल. यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐसे इसको फ्लेक्सिबल किया है, मीन्स फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्रागम विच एक्ट एज अ मिरर. वो क्या करता है, एज अ मिरर बोल के एक्ट होता है. सो अदर एंड बाय फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्रागम which act as an mirror. So now if you are able to see in this diagram, the laser diode is there, or through this one there is a IR radiation is get fall. So generally अब इसके अंदर क्या बोला है हमने, गैस गेट फील्ड, विच गैस इज देयर, xenon गैस इज देयर. अब इस साइड से हम रेडिएशन पास कर रहे हैं, आपके पास ये विंडोज है विच इज अ मेड अप ऑफ रिजिड ब्लैक एंड मेटल प्लेट. सो ये जो मेटल प्लेट के ऊपर रेडिएशन जैसे गिरेगा, सिंपल रेडिएशन गिरने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है. लेकिन जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो जो रेडिएशन इसके ऊपर गिरेंगे, तो जैसे ही वो रेडिएशन इसके ऊपर गिरने लगेंगे तो क्या होने लगेगा कि दैट प्लेट्स गेट हीटेड. ब्लैक एंड मेटल प्लेट क्या होने लगेगी, हीट होने लगेगी. जैसे ही हीट होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, that whatever the gas is enclosed in that one, that enclosure gas get expand. वो जो है enclosed gas इसके अंदर जो था expand होने लगेगा, और जैसे वो expanded होने लगेगा that silver diaphragm जो है वो move करने लगेगा. the whatever the silver diaphragm is there that start to get moves. और ये जो है ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे अगर आप देख रहे तो ये प्लेन होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा मूव होने लगा. अब क्या हो जाएगा, सिल्वर डायग्राम ऐसा थोड़ा ऊपर हो जाएगा यहाँ से. वो डिपेंड किसके ऊपर, जितना गैस एक्सपांड होने लगेगा ये मूव होने लगेगा. और जैसे और कॉन्स्टेंटली हम इससे रेडिएशन पास कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि वट एवर द डिफॉर्म द फ्लेक्सिबल डायफ्राम, ये जो फॉर्मेशन इसकी जो फिक्स पोजीशन थी वो डिफॉर्म हो जाएगी, चेंज होने लगेगी. और एम्पलीफाई प्लेसिंग अ लैम्प, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लैम्प प्लेस करेंगे. लैम्प क्या करेगा, यहाँ पे हमने एक लैम्प प्लेस किया है, ठीक है. यहाँ पे मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पे हमने एक लैम्प प्लेस किया है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो रेडिएशन कंटिन्यूसली पास करेगा, ठीक है. अदरवाइज यहाँ से हमने कंटिन्यूसली रेडिएशन मीन्स एक लैम्प है, वो लेज़र टाइप का लैम्प है, कंटिन्यूसली रेडिएशन पास करेगा. तो क्या करेगा, दैट लैम्प is passing the light which goes toward the phototube. यहाँ पे हमने बाजू में एक फोटोट्यूब, यहाँ पे एक फोटोट्यूब प्लेस किया है. तो जैसे ही सिल्वर डायफ्रागम पास करेगा तो यहाँ से रेडिएशन इधर पास होकर वो फोटोट्यूब की तरफ चले जाएगी. और जब कोई हीट ही नहीं प्रोड्यूस होगी तो सिल्वर डायफ्रागम फिक्स रहेगा, तो कोई रेडिएशन पास ही नहीं होगा. तो बिकॉज ऑफ दैट सिल्वर डायफ्रागम मूव्स, that directly movement of that silver diaphragm is directly depends upon the amount of the excess of incident radiation that fall onto that window of rigid blackened metal plate. So उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल हम इसमें डिटेक्ट करते हैं. that is about the Golai cell. Again I am repeating, generally consist of metal cylinder. उस सिलेंडर के अंदर एक साइड से हमने क्या किया है, सिल्वर डायफ्रागम, फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्रागम सेट किया है. एक साइड से हमने क्या किया, रिजिड ब्लैकन मेटल प्लेट विंडो हमने सेट की है, उसके ऊपर रेडिएशन गिरता है. जैसे उसके ऊपर रेडिएशन गिरता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और उस मेटल सिलेंडर के अंदर हमने xenon गैस इनक्लोज किया है. दैट गैस गेट एक्सपांड, बिकॉज ऑफ दैट गैस गेट एक्सपांड द मेम्ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्रागम, दैट आल्सो गेट मूव्स. और वो जो रेडिएशन है वहाँ पे हमने क्या किया है, लैम्प इज सेट और देयर विच लैम्प इज सेट इन द डिटेक्टर विच पास द रेडिएशंस. तो जैसे उसका मूवमेंट होगा वो रेडिएशन बाहर चला जाएगा, और कितना रेडिएशन उसके ऊपर गिरने लगा है वो हम मेजर करेंगे.
So that is about the Golgi cell. Next is an pyroelectric detector, which is a fourth as per our syllabus, but fifth in our slide. So pyroelectric detector, in the case of this one, so in the case of pyroelectric detector, generally they are constructed from single crystalline water pyroelectric material. ये जो है ना pyroelectric नेम ही है, pyroelectric detector made up of an pyroelectric material, उससे बनता है, ठीक है. विच आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो, विच आर स्पेशल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर क्या है, थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, एग्जाम्पल हम उसका लेंगे ड्यूटेरेटेड ट्राइग्लिसरीन सल्फेट. ओके, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग है, पायरेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशंस, जैसे हम रेडिएशन पास करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टेक्स प्लेस. So the magnitude of the polarization is as a function of dielectric constant of that material. There is a fixed potential when we doesn't apply any kind of radiation or plane radiation, but when we apply an excess amount of the radiations, then that excess amount of radiation, what going to be happen? It polarization as a function of dielectric constant of the material. This piezoelectric crystal is sandwiched. अब हमने क्या किया है कि it gets sandwiched between the two electrodes. Act as a temperature dependent, which act as an temperature dependent. When IR radiation fall on there, उसके ऊपर हमने जैसे IR radiation fall किया, there is a change in the temperature, which alters the change distribution across the crystals. Okay, हमने क्या किया है कि two different electrodes are there which are get sandwiched and act as a temperature dependent. उसके ऊपर हमने IR radiation fall किया. So there is a change in temperature. जैसे हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का आयर रेडिएशन फॉल करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर विच अल्टर्स द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रिस्टल्स. दोनों क्रिस्टल के बीच में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रिस्टल विच कैन बी डायरेक्टेड एज अ करंट. वो क्या करेगा, जैसे उनके ऊपर चेंजेस होने लगेंगे, इट गिव्स द डिफ्लेक्शन इन द फॉर्म ऑफ करंट इन एन एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर क्या करेगा, वो करंट फॉर्म करेगा टू टू साइड्स ऑफ द कैपेसिटर्स. ओके, दोनों साइड के कैपेसिटर पे ये क्या करेगा, ये करंट चेंज होने लगेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्रिस्टल्स. करंट प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड कितना रहेगा वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन जितना अमाउंट का पोलराइजेशन होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. सो जितना टेम्परेचर चेंज होने लगेगा पोलराइजेशन देगा और वो डिपेंड होगा आपके आयर रेडिएशन जो आपके सैंपल के ऊपर फॉर्म होने लगा है. सो दिस ऑल थिंग्स अबाउट द पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर. सो देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चेंजेस इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज एन पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर इज नेम. ओके, सो दैट इज अबाउट द थर्मल डिटेक्टर. सो अभी तक हमने जो स्टडी किया है दैट इज होल थिंग अबाउट द थर्मल डिटेक्टर. नाउ we move towards the next one, that is a photon detector where there is a no heat is generated. वहाँ पे हीट नहीं जनरेट होती है. सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन और जर्मिनेशन टेक्स प्लेस. सो दिस फिल्म्स ओवरलैप्स ओवर नॉन कंडक्टिंग सरफेस. सो here is an explanation of photon detector. These films overlap with the non-conducting surface. Absorption of IR radiation. So non-conducting valence, अब सबसे पहले तो नॉन कंडक्टिंग, तो कंडक्ट नहीं करते हो इलेक्ट्रॉन्स, नॉन कंडक्टिंग जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया था वैसे ही है. एब्जॉर्प्शन ऑफ आयर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं. नॉन कंडक्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी कंडक्टिंग स्टेट, वो क्या करते हैं, नॉन कंडक्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी कंडक्टिंग स्टेट. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप्स. इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है. तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, that depends upon the amount of radiation falls. So now if you are able to see in this diagram, here is the two types of detectors, photoconducting detector and semiconducting detectors. We study one, photoconducting detectors.
which is non-thermal. Obviously, they are both are non-thermal, sensitive. They are highly sensitive, made up of photosensitive material like cadmium, aspen sulfate, lead sulfate. Okay, so they are made up of cadmium sulfate, lead sulfate. When IR radiation get fall, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. जैसे आयर रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होने लगता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. करंट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन. जितना करंट प्रोड्यूस होगा वो एक्सेस ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड होगा. सो दैट इज द फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर. सेकेंड वन इज द सेमी कंडक्टिव डिटेक्टर. इट्स एक्ट एज एन इंसुलेटर व्हेन रेडिएशन नो रेडिएशन फॉल मीन्स प्लेन रेडिएशन जब फॉल होगा तो एक इंसुलेटर बोल के काम करेगा. ठीक है. सो हियर इज एन टाइप पी टाइप. इट्स बिकम कंडक्टर व्हेन रेडिएशन गेट फॉल्स. सो जैसे इसके ऊपर रेडिएशन फॉल होने लगेगा, एक्स रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा. इलेक्ट्रॉन जैसे जनरेट होगा सो इट कॉजेज द इलेक्ट्रिकल चेंजेस. एन नॉट पी टाइप के जंक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होने लगेंगे. और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो गए वो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द amount of the excess of radiation get fall onto that one. तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगा. सो इट कॉजेज द चेंज इन इट्स वोल्टेज. ये क्या करेगा, वोल्टेज चेंजेस इसमें हो गए. सो दैट इज द केस ऑफ फोटो और फोटोन डिटेक्टर्स. सो दैट मच अबाउट द डिटेक्टर. सो in the next slide we are study about the type of spectrophotometers. Okay, so there are the two different types of spectrophotometers, single beam spectrophotometer or double beam spectrophotometer. Single beam means what, actually there is an source radiation get passed through solution at a time, sample or reference. Okay, एट अ टाइम. एक तो हम सैम्पल की तरफ पास करते हैं, रेफरेंस की तरफ पास कर सकते हैं. एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो उसमें क्या होता है कि इसमें जैसे रेडिएशन हम फॉल करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इन द केस ऑफ डबल बीम, सो सिंपली है रेडिएशन जा रहा है, सैंपल की तरफ जा रहा है. सो स्लिट की वजह से सैंपल सेल की तरफ चला जाएगा. NaCl और KBr की हमारी प्लेट से उसके ऊपर रेडिएशन है, तो जैसे रेडिएशन उसके ऊपर चला जाएगा तो एक्साइटेशन होगा. लेकिन एक तो हम सैंपल प्लेस कर सकते हैं और स्टैंडर्ड प्लेस कर सकते हैं. लेकिन वही चीज़ अगर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की है तो आयर रेडिएशन है, यहाँ से मिरर से थ्रू दिस मिरर इट गो टूवर्ड द रेफरेंस, इट गोज टूवर्ड द सैंपल. एट अ टाइम दोनों अलग अलग तरफ से, यहाँ से बीम स्प्लिटर है तो स्प्लिट करके रेडिएशन दोनों तरफ चला जाएगा. एट अ टाइम हम रेफरेंस और एज वेल एज सैंपल स्टडी कर सकते हैं. देन द गो टूवर्ड द मिरर एंड गो टूवर्ड द चॉपर. चॉपर से, चॉपर का इसमें अलग रोल है कि ये दोनों रेडिएशन एक जगह पे आते हैं. तो यहाँ पे अगर हमने स्टडी किया है तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर IR से लेके यहाँ से मोनोक्रोमेट्री ग्राटिंग एंड देन गेट टूवर्ड द IR डिटेक्टर्स. तो फाइनली डिटेक्टर की तरफ ये पहुँचता है. लेकिन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एट अ टाइम हम रेफरेंस और सैंपल स्टडी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल स्टडी कर सकते हैं. सो दैट इज द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर. इन द नेक्स्ट वन or the final we study the next lecture about the application of IR spectroscopy, which is a very important point too. So thank you very much for your patience listening and wish you a very happy learning. So thank you.